So these are the main points of our today's lecture. We're going to start from stimulus filter. Stimulus filtering and feature detectors mean whenever our body receives a stimulus from the environment, any kind of stimulus in the form of emotions or external stimuli, they're filtered in the brain, they are interpreted, and then our output behavior, it results in the form of certain actions, either from the muscles or effect of glands and their secretions. बिकॉज यू नो कि हमारी बॉडी में जो इफेक्टर ग्लैंड्स हैं, जो रिस्पॉन्स शो करेंगे, जो बिहेवियर शो करेंगे, इफेक्टर पोर्शन वो दो ही है मेन, एक मसल्स और दूसरा ग्लैंड्स. सो व्हाट इज स्टिमुलस फिल्टर? An animal's senses are tuned to its way of life. They are working according to the animal's lifestyle. Either they're living in the terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, wherever the living organisms are surviving or passing the life. They have their own senses, which have passed through a long evolutionary history to adjust themselves. And the neurons of the sensory system act as hierarchies of the stimulus filters, deciding which components of the wealth of the information they receive to consider and which to ignore. इंफॉर्मेशन का फिल्टर करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को हाई नर्वस सिस्टम के एरियाज तक नहीं पहुंचने देना या कौन सी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है. It depends upon the filtration ability of the brain or filtration of the stimuli. In this way, information specific to a particular behavior is channeled along a specific neuronal pathway or neural pathway. Those areas of the nervous system that respond to particular stimuli are termed as feature detectors. हम इनकी एग्जांपल्स के साथ इनकी डिस्कशन करते हैं कि ब्रेन के वो एरियाज जिन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, रिस्पॉन्स देना है, वो फीचर डिटेक्टर्स हैं, और वो एरियाज ब्रेन के जो जस्ट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहे हैं बिफोर दिस इंफॉर्मेशन रीच टू द हायर एरियाज ऑफ द ब्रेन, उनको हम बोलते हैं स्टिमुलस फिल्टर एरियाज. आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ केस स्टडीज दिए गए हैं, जैसे आपको राइट साइड पे जो डायग्राम नजर आ रही है, ये एक वॉन्डरिंग स्पाइडर है, क्यूपिनियस सेलाई. ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ वेब. अगर आप स्पाइडर की अपेंडेजेस को देख सकें तो इसमें टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अपेंडेजेस पे और इसकी बॉडी पे आपको नजर आ रहे होंगे. These tiny hair-like appendages or structures, they are responsible for the detection of vibrations which are taking place in the air. एयर के अंदर होने वाली कोई भी मूवमेंट, कोई भी वाइब्रेशन, उसको बड़ी आसानी से अपने सेंसरी जो प्रोजेक्शंस हैं इनके अपेंडेजेस पे और बॉडी पे, उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं. और ये एयर के अंदर मूविंग इंसेक्ट्स को ही बाय जंपिंग उनके ऊपर प्रे कर सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं. The ability to correctly identify and then acquire and process food is a behavioral process that is surely a prime candidate for reflex status. कि फूड को आइडेंटिफाई करना, फूड को कैप्चर करना, फूड को ऑब्टेन करना एनवायरनमेंट से, ये सर्वाइवल के लिए, रिफ्लेक्स स्टेटस के लिए प्राइम जो है वो कॉजेज हैं. Many animals, and particularly those that never meet their parents, need to be able to find food for themselves at the very earliest opportunity. If they cannot, they may well starve. तो animals जिनको parental care नहीं मिलती, for example in most of the insects, how do they get food from the environment or how do they learn for getting food in the environment? वो foraging behavior कैसे perform करते हैं, ये बाकी life activities कैसे perform करते हैं, तो इसके हवाले से हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था that they depend upon innate behavior, they depend upon instincts. इंस्टिंक्टिवली वो जान रहे होते हैं, इंस्टिंक्टिवली उनके पास ये स्किल होती है कि अपने एनवायरनमेंट से फूड ले सके, और अगर वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकेंगे, दे विल नॉट सर्वाइव. यहाँ पे एक स्पाइडर की इनेट एबिलिटी को डिस्कस किया गया है केस स्टडी के हवाले से कि वो अपने एनवायरनमेंट से फूड को कैसे कैप्चर करते हैं बाय presence of minor or minute or small tiny hairs on their body as well as on their appendages. लेकिन जिस
एग्जाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रे कैप्चर बाय द टोड्स. Behavioral aspects of the toad prey capture reflects to a particular area of the central nervous system. It's feature detector. ब्रेन का वो एरिया जो फीचर डिटेक्टर के तौर पे काम कर रहा है और स्टिमुलस फिल्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एग्जांपल्स के तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. वेल, टोड का यहाँ पे जिक्र आया, तो जनरली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोड्स एंड फ्रॉग्स, तो इस स्लाइड में एक जनरलाइज डिफरेंसेस दिए गए हैं टोड्स एंड फ्रॉग्स के. टोड्स दे हैव थिक dry skin with bumps and usually brown in their color, but there may be other colors as well. They lay egg in a chain. They have stiff and stout body type, short legs, and they live on land. They prefer to walk or usually they use small hops. लेकिन ये जो हमारे पास फ्रॉग की बात होती है, फ्रॉग दे हैव थिन वेट एंड स्मूथ स्किन. दे ले एग्स इन क्लस्टर्स and they are having very long hind legs. इनकी legs का difference होता है क्योंकि इन्होंने अपनी legs को jumping के लिए use करना होता है. That's why they prefer to jump and they live mostly in the water and they have slim body type. But toads are having stout and broad body type usually. ये इनके general differences हैं. इसकी skin का difference होता है generally कि toad की skin rough होती है, frog की skin slimy और moist होगी for most of the time. Well, टोड के हवाले से एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है, हाउ डू दे कैप्चर देयर प्रे. ये जनरल आइडिया तो आप लोगों को यकीनन होगा पहले भी कि इनकी जो टंग होती है प्रोट्रूसिबल होती है. ह्यूमन की टंग बैक साइड पे अटैच्ड है माउथ कैविटी में, बट टंग ऑफ द टोड इज अटैच्ड ऑन द फ्रंट साइड. ये फ्रंट साइड पे अटैच होती है, ये फ्लिप करते हैं, फ्लिप आउट देयर टंग. तो इनकी टंग जो है स्टिकी टंग है, जो इंसेक्ट्स या इनके प्रे के साथ यूजुअली अटैच होके उनको कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रे को बाय यूजिंग देयर स्टिकी टंग एंड प्रोट्रूसिबल टंग. When a prey item, usually a worm or an insect, moves through the visual field of a toad, जब इनको जाहिर नजर आएगी कोई चीज तो अपनी विजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना बेसिकली. The toad moves so that it faces the prey animal. पहले अपनी डायरेक्शन उस साइड पे करेंगे जिस साइड पे इनका प्रे इनको नजर आ रहा है. The toad approaches the prey animal to within striking distance, जहाँ पे उसको अटैच कर सकें टंग के साथ. The toad uses its tongue to strike at the prey animal and captures it. The toad swallows the animal and toad wipes its mouth. It's the behavior of feeding or prey captured by the toads. But what are the underlying causes या brain के कौन से areas इनको जो है वो filter out करें? This behavior sequence can be regarded as a reflex. Tongue के साथ prey को capture करना और उसको engulf कर जाना ये उनका instinctive reflex है. Because it is released by the vision stimulus, and you know vision एक innate sense है. It is innate because of newly metamorphosed toad that is completely prey naive, जिसको बिल्कुल prey का आइडिया नहीं है, जिसके लिए prey बिल्कुल एक न्यू चीज है, वो भी ये बिहेवियर शो करेगा toad या frog, जिसके लिए बिल्कुल prey जो है वो एक न्यू एक्सपीरियंस होगा prey को कैप्चर करना. बिकॉज all these senses they are innate behavior के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. That's why उनको prey capture में प्रॉब्लम नहीं होगी. But how are these innate reflexes regulated? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया. If a hungry toad is presented with a model worm, उन्होंने एक मॉडल वर्म बनाया जिसकी लाइक एक स्टिप बना ली वर्म लाइक बॉडी, जिसमें अगर उसकी लेंथ ज्यादा है और हाइट कम है तो वो एक वर्म लाइक अपीयर होगा. अगर उसकी हाइट बढ़ा दी जाए या ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दी जाए तो वर्म लाइक अपीयर नहीं होगा. तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स मेनली यहाँ पे यूज किए गए, एक वर्म लाइक और एक नॉन वर्म लाइक. कि क्या फ्रॉग या टोड उनके ऊपर अपना सेम रिफ्लेक्स शो करते हैं जो वर्म्स पे यूजुअली शो कर रहे होते हैं. By taking advantage of this, it is possible to present a large a range of worm-like and non-worm-like stimuli to better understand the behavior of the toad. कि वो किस शेप के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे थे. इस ग्राफ को अगर आप समझ सके, this graph is showing responses of responses of a toad or to a moving stimuli of gradually increasing size. Diagram A is a worm-like stimulus. इसकी लेंथ ज्यादा थी, हाइट कम थी. B
is a non-worm-like stimulus, and C, a square stimulus. No stimulus was recorded to any stationary stimuli. अगर stationary stimuli दिए गए थे तो उसके against कोई stimulus नहीं था. Diagram जो A है, आप अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर सके क्लोजली, जस्ट लुक एट दिस, तो सबसे ज्यादा एवरेज प्रे कैचिंग एक्टिविटी, सबसे ज्यादा एक्टिविटी डायग्राम ए के हवाले से नजर आ रही है. फिर बी की एक्टिविटी जो नॉन वर्म लाइक था बहुत कम है, ना होने के बराबर, और सी की एक्टिविटी भी कम है एज कंपेयर टू ए. द ऑप्शन ए और जो एक्सपेरिमेंट में ग्रुप ए था उसके अंदर टोड को एक्सपोज किया गया बाय यूजिंग वर्म लाइक प्रेज, कि वर्म लाइक प्रेज उनके ऊपर उसका फीडिंग बिहेवियर या फीडिंग रिफ्लेक्स, प्रे कैप्चर रिफ्लेक्स स्विच ऑन होता है या नहीं. एवर्ट साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ दिस एंड अराइव्ड एट द रिजल्ट प्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम 2.6 from which he deduced that the more worm like a stimulus is, the stronger is its releasing effect. The discrimination exhibited suggests that a stimulus filter and feature detector may be at the work here. कि इन डिफरेंट स्टिमुलाई को वो डिटेक्ट कर रहा है टोड और फिर उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है. इट मींस टोड के माइंड में, टोड के ब्रेन में स्टिमुलस फिल्टर भी हो रहा है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कब कम या ज्यादा देना है या कौन सा रिस्पॉन्स बेनिफिशियल या हार्मफुल है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी हो रही है. व्हेन फर्दर इसी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो द टोड ब्रेन हैज बीन शोन ओवर हियर, द टोड ब्रेन शोइंग द कनेक्शंस बिटवीन द रेटिना, जहां से वो प्रे कैप्चर के लिए स्टिमुलस स्टार्ट होता है या प्रे नजर आना शुरू होता है जहां से, एंड द थैलेमिक प्रीटेक्टम covering of the thalamic part, and optic tectum via the optic nerve. Optic nerve, thalamus, you can see over here, optic nerve, thalamus, thalamus pretectum and optic tectum, they are shown here. फिर optic tectum का एक cross section बेटा दिया गया, a section taken through the brain to reveal the position of thalamus type 5 cells. T5 cells, thalamus type 5 cells, they are shown over here. Eyes are the important sense organs in the case of this behavior, and so the optical system of the toad. जाहिर है आई से जो स्टिमुलस रिसीव होगा उसको ब्रेन के ऑप्टिकल एरियाज, विजन से रिलेटेड एरियाज ही एनालाइज करेंगे. To search for the stimulus filter and the feature detector, information enters the system as a light via the eye. It is translated into a pattern of electrical signals via the rod and cone cells of the retina. ये आपने फिजियोलॉजी में डिस्कस किया होगा कि रेटिना के थ्रू ही, जो रेटिना की 9 लेयर्स आपने पढ़ी थी, उन 9 लेयर्स में से रॉड्स एंड कोन सेल्स इन सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करेंगे एंड दे इन टर्न स्टिमुलेट द सेल्स फॉर्मिंग द रेटिनल गैंग्लियन, and the signal is transmitted onwards to the brain via the axons that comprise the optic nerve. अब ये ब्रेन के पार्ट से ब्रेन के पाथवेज डिस्कस करने का मतलब आपके साथ यहाँ पे यही है कि आप इस चीज को देख सकें कि ब्रेन में ये चीजें कैसे एनालाइज हो रही हैं और ब्रेन के कौन से पार्ट्स इनके एनालिसिस के तौर पे स्टिमुलस को फिल्टर करते हैं और फिर एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं. These axons connect two regions of the brain. ब्रेन के दो पार्ट्स है जो इनको एनालाइज करें, थैलेमिक प्रीटेक्टम एंड बिहाइंड इट इज द टेक्टम. The tectum itself is composed of layers of neurons and axons from 6 different classes of retinal cells terminate in the specific layers. तो ये टेक्टम या थैलेमिक टेक्टम, थैलेमस के जो पार्ट्स हैं उनकी एनालिसिस के हवाले से डिस्कशन है. The stimulus filter and receptive field, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा कि रिसेप्टिव फील्ड का एरिया कौन सा होता है. Information received by the toad retina is transmitted to the optic tectum of the brain via the optic nerve. A bundle of axon originating from a class of cells termed optic ganglia. जहाँ पे optic ganglia या optic nerves end हो रही थी, analysis point, feature detector point. Information is received by these ganglia from bipolar cells, interneurons, that in turn stimulate by the receptor cells, that are in turn stimulated by the receptor cells, rods and cone of the retinal surface. कि interneurons को किसने stimulate किया था?
इनकमिंग लाइट वेव्स जो कि रिसेप्टर सेल्स रॉड्स एंड कोन से आ रही थी। अब इस फिगर में जो आपके सामने नजर आ रही है 2.8, each ganglion receives this information from a discrete specific area of the retinal surface referred to as the receptive field. हम बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस फिल्टर के साथ साथ जो ब्रेन के अंदर ऑप्टिकल एरियाज हैं वहां पे स्पेसिफिक गैंग्लियन या गैंग्लिया मौजूद है। हर गैंग्लियन जो है वो एक स्पेसिफिक रेटिनल सेल्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे रेटिना शोन्स है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलाई विच दे आर रिसीविंग। Just 1 minute. Well, the excitatory and inhibitory regions of the retinal receptive field of a single ganglionic cell. The arrangement of the cells involved in the transmission of sensory information from the retina to the optic nerve. ये different cells हैं, negative mean जो है वो inhibitory regions और positive mean excitatory regions. ये ganglionic cells तक messages आएंगे sensory neuron के rods and cones से retina के through, sensory cells जो कि bipolar नजर आ रहे हैं आपको, और जहां से मैसेज आएगा वो कम्युनिकेट होगा गैंग्लियोनिक सेल तक टू ऑप्टिक नर्व फॉर फर्दर एनालिसिस। सेक्शन ऑफ द रेटिना, इनहिबिशन रीजन ऑफ द रिसेप्टिव फील्ड जहां पे इसको इनहिबिट नहीं किया जाना, एंड द एक्साइटेटरी रीजन जहां पे इसकी रिसेप्शन होगी, जहां पे इसको रिसीव किया जाएगा, वो एरिया ब्रेन का जहां पे रिसीव होगा। तो नेगेटिव एरिया ये जो शो हो रहे हैं इनहिबिटरी एरियाज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि अगर एक वर्म लाइक स्टिमुलस टोड को शो किया था तो उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन और उसकी शेप की इंफॉर्मेशन इन्हीं दो एक्शंस की वजह से जाएगी कि जिस एरिया में टोड को वर्म नजर आ रहा है वो पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेगा और जहां पे नजर नहीं आ रहा वो नेगेटिव सिग्नल जाएंगे। दैट विल क्रिएट एन इमेज इन द रिसेप्टिव फील्ड और रिसीविंग फील्ड ऑफ द ब्रेन। द रिसेप्टिव फील्ड ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। It is that area of the world of the animal form which information is received by the particular cell, or it is also the specific region or group of sensory cells of the information receptor, the retina for example, from which information is transmitted to the cell. वो सारा एरिया जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है इज टर्म्ड एज रिसेप्टिव फील्ड। इस केस में बेटा रिसेप्टिव फील्ड क्या है? रेटिना ऑब्वियसली, रॉड्स एंड कोन सेल्स जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव होंगी, और गैंग्लियन ऑप्टिक नर्व के वो स्टिमुलस को फिल्टर करके आगे एनालिसिस के लिए ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स में इसको पहुंचाते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन के बाद फिर जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। प्रीवियस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे शो किया गया। द रिसेप्टिव फील्ड ऑफ ईच गैंग्लियन सेल comprises an area of the retina divided into two concentric circles. एक सर्कल जो है वो इल्यूमिनेट होगा तो वो पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेगा, दूसरा जो है वो नेगेटिव इनहिबिटरी। This will stimulate the ganglionic cell and an electric potential is recorded in the axon. And information is transmitted कि positive signals कहाँ से आ रहे हैं और negative signals कहाँ से आ रहे हैं। However, a far stronger signal will be transmitted to the brain if only the cells of the inner circle of the receptive field are stimulated. अगर ये inner cells सिर्फ stimulate हो रहे हैं तो एक strong signal जाएगा और inhibition से surrounding area जो है उसका signal जा रहा होगा कि यहाँ पे specific स्टिमुलस मौजूद नहीं है। रिसेप्टिव फील्ड की बात हो रही है दोबारा से। When then there is a signal diminished when both circles are stimulated. Why then is the signal diminished? कि अगर दोनों सर्कल्स को स्टिमुलेट कर दें तो इनहिबिशन की होती है। ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर दोनों सर्कल्स को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो भी इनहिबिशन हो जाएगी। The answer to this question can be found if only those cells comprising the outer circles are stimulated. The effect of this is that no signal is transmitted to the brain because the ganglionic cell is not stimulated. कि outer cells का काम ही inhibition है। अगर आप outer cells को भी stimulate कर देते हैं तो वो inner cells की जो communication है, inner cells inner area की जो communication है उसको भी block कर देंगे। तो रेटिना में ये जरूरी होता है कि specific cells जब signal cell send करे तो outer areas image formation के लिए negative signal send करे। However, a far stronger signal will be transmitted to the brain if only the cells of the inner circle of receptive field is stimulated.
इट मीन्स रिसेप्टिव फील्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनर एरिया से बनती है कि इनर एरियाज ही रिसेप्टिव फील्ड्स हैं, आउटर एरियाज आर नॉट फॉर्मिंग द रिसेप्टिव फील्ड. Well, the next topic which we are going to discuss is the feature detector. And the feature detector, each retinal cell class, just 1 minute.